Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to discuss the poem Painted Ceiling in detail, along with the extra question answers, the maximum possible question answers which I have been able to frame. So let's first discuss about this poem. This is the Painted Ceiling, and it is a poem which is written by Amy Lowell. And let's talk about the poetess first. Amy Lowell, she was born in 1874 till 1925, and she was an American poet, and she died in 1925. She was born in 1874 in USA. She was a poet, critic and lecturer. It's the painted ceiling. So first, what is ceiling? Ceiling is a surface above our head in a room. And what kind of ceiling it is? It is a painted ceiling. So this word is a describing word. Ceiling is a noun and this is a describing word, so this is adjective. Now if we talk about the overall poem, that what exactly is going on, that there is a little girl. So the central character of the poem is a young and short girl, and who sees a bunch of fruits which are painted on the ceiling of a room, and she's so fascinated and attracted towards those bunch of fruits that it seems to her that they are about to fall. So she always stands beneath those fruits with her mouth wide open with the hope that they would fall and she would eat them. So overall, if we see, this poem is like a fable of Fox and Grapes, which we had studied when in our junior classes, wherein there were fruits which could not be reached by the fox, and here also there are the fruits, but these are the painted fruits which the girl is unable to reach to. So in the fable of the Fox and Grapes, there were grapes which could not be reached by the fox. In this poem, there is a painting. You can say there is a painting of fruits which is painted on a ceiling, which seems magical to the poet, but she is unable to reach those fruits as she is short. So all in all, she is attracted towards those fruits which are painted on the ceiling, and because she is a little girl, so those fruits appear attractive to her, and she imagines that they are the magical fruits which are hanging up there, and she hopes that they would fall down. But in the end, she resigns, or she gives up, like the fox in this fable Fox and Grapes, to being without it. But in the end, she realizes that she won't be able to get them, so she gives up this idea. So let's start the poem. First stanza. My grandpa lives in a wonderful house with great many windows and doors. There are stairs that go up and the stairs that go down, and such beautiful slippery floors. तो इसमें क्या हो रहा है, that the girl, she's talking about the house of her grandfather, and that's a lovely and beautiful house, and there are many windows, doors and stairs that go up and down. इससे क्या पता चलता है कि probably there are multiple floors in that house, so they can easily go up and down the floors, different floors, and such beautiful slippery floors. और उस house में बहुत सारे slippery means highly polished and smooth floors हैं. तो अगर मैं एक बार हिंदी में समझाऊँ for our viewers, this poem is a painted ceiling. ये लिखी है एमी लोवेल ने, एंड ये एमी लोवेल कौन थी? अमेरिकन पोएट थी जो बॉर्न हुई थी 1874 में, एंड शी डाइड इन 1925. शी वॉज बॉर्न इन यूएसए, एंड शी वॉज अ पोएट, क्रिटिक एंड लेक्चरर. राइट नाउ उन्होंने पोएम लिखी, नाम लिखा द पेंटेड सीलिंग. सीलिंग होती है हमारे घर की, हमारे रूम की छत. वो छत कैसी है? पेंटेड. तो ये पेंटेड वर्ड एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है नाउन का, सीलिंग एक नाउन है, एंड दिस इज़ द एडजेक्टिव. सो इस पोएम में मेन कैरेक्टर है एक छोटी सी लड़की, जो यंग लड़की है, लिटिल गर्ल है, छोटी लड़की है, एंड उसकी हाइट शॉर्ट है. और ये पोएम की स्टोरी किससे मिलती जुलती है? एक जो हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, फॉक्स एंड द ग्रेप्स की, जिसमें फॉक्स भी ग्रेप्स तक पहुंचना चाहती थी, बट एंड में वो पहुंच नहीं पाई थी और उसने गिव अप कर दिया था, उसने हार मान ली थी कि अब उसको ग्रेप्स नहीं मिलेंगे. वैसे ही ये लड़की को एक रूम की छत पे पेंटेड फ्रूट्स दिखते हैं. वो सोचती है कि शायद ये असली के फ्रूट्स हैं और ये किसी दिन गिरेंगे नीचे और वो उनको खा सकेगी. बट जब उसको रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो भी गिव अप कर देती है, हार मान जाती है कि अब उसे वो नहीं मिलने वाले. तो वो क्या समझती है, क्योंकि वो एक बच्चा है, तो वो समझती है कि ये कुछ मैजिकल फ्रूट्स हैं, बट अब उसको नहीं मिल सकते. तो अब पहले स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में वो क्या कह रही है? अपने ग्रैंडफादर के हाउस के बारे में बता रही है कि ये एक बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल हाउस है जो बहुत ही बड़ा है. इससे क्या पता लग रहा है? बहुत ही बड़ा हाउस है, बहुत सारे विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, एंड स्लिपरी फ्लोर्स हैं. स्लिपरी क्यों? क्योंकि उन पर बहुत ही बढ़िया से पॉलिश और स्मूथनेस की हुई है. राइट और स्टेयर्स अप एंड डाउन जा रही है. इससे हमें पता चलता है कि उस घर में शायद कुछ मल्टीपल फ्लोर्स होंगे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा सेकंड. बट ऑफ ऑल द रूम्स, सब रूम में से, इवन मदर्स एंड माइन, मतलब उस घर में उसकी मदर का भी रूम है और उसका अपना भी रूम है, पोएट का अपना रूम भी है. एंड द बुक रूम मीन्स एक लाइब्रेरी भी है. एंड पार्लर मीन्स गेस्ट रूम या सिटिंग रूम या ऐसा रूम जो घर में होता है फॉर विजिटर्स. तो कितने रूम्स हो गए? मदर का रूम भी है, पोएट का रूम भी है, एक लाइब्रेरी या बुक रूम भी है और एक पार्लर भी है. बट उन सब में से आई लाइक द ग्रीन डाइनिंग रूम. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा रूम है? सबसे बेस्ट कौन सा रूम है? सो मच द बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट रूम कौन सा लगता है? डाइनिंग रूम, जो कि ग्रीन है. बिकॉज, क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ऑफ इट्स सीलिंग एंड वॉल. सो देयर आर 2 पॉइंट्स. डाइनिंग रूम क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है? नंबर 1, because of the ceiling and the wall. So you can see the picture here, and we'll study ahead, and then we'll come back to the picture. Third stanza. Right over your head is a funny round hole. तो वो कह रही है जस्ट अपने, अगर आप उस डाइनिंग रूम में जाओ तो आप छत की तरफ देखो. ओवर योर हेड मीन्स ऊपर देखो छत की तरफ. देयर इज़ अ फनी राउंड होल. एक राउंड सा होल है किसमें? सीलिंग में.
विद एप्पल्स एंड पेयर्स फॉलिंग थ्रू, और उस राउंड से होल में क्या बना हुआ है, फ्रूट्स बने हुए हैं। कौन कौन से फ्रूट्स, एप्पल्स हैं, पेयर्स हैं। फॉलिंग थ्रू मीन जो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे गिरने वाले हैं। देयर इज अ बिग बंच ऑफ ग्रेप्स ऑल पर्पली एंड स्वीट। अब वो ग्रेप्स कैसे हैं, सो दीज आर अगेन एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कि पर्पली एंड स्वीट ग्रेप्स हैं, एंड मेलन्स एंड पाइनएप्पल्स टू, और क्या क्या है वहाँ पे, मेलन्स भी बना हुआ है और पाइनएप्पल्स भी हैं। सो देयर आर फ्रूट्स विच आर हैंगिंग ओवर हर हेड विच आर वेरी टेम्पटिंग। तो इसको ये फ्रूट्स बहुत ही टेम्पटिंग है, अट्रैक्टिव लगते हैं, तो इसका मन लग जाता है वो फ्रूट्स को खाने का। दे टम्बल एंड टम्बल बट नेवर कम डाउन। टम्बल का क्या मीनिंग है, टू मूव और टू फॉल ओवर वन अनदर। तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा लग रहा है उसको कि वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, और उसको लगता है कि शायद वो फॉल डाउन करेंगे, वो नीचे गिरेंगे, बट वो कभी नीचे आते नहीं हैं। दो आई हैव स्टूड अंडरनीथ अ लॉन्ग, वो कह रही है कि मैं इतने लंबे लंबे टाइम तक वेट करती रहती हूँ, नीचे खड़ी रहती हूँ, वेट करती रहती हूँ कि कुछ नीचे गिरेगा। वाइल विद माई माउथ ओपन वाइड, अपना मुँह बड़ा सा खोल के नीचे वेट करती रहती हूँ कि कोई फ्रूट्स गिरेंगे तो मैं उन फ्रूट्स को खाऊंगी। फॉर आई ऑलवेज हैव होप्ड मीन्स वो उम्मीद कर रही है कि उन फ्रूट्स में से कुछ ज़रूर नीचे गिरेगा, तो वो अपना माउथ वाइड ओपन करके मुंह खोल के नीचे वेट कर रही है कि कुछ गिरेगा तो आई विल हैव इट, मैं उसको खा पाऊंगी। और क्या मिलेगा, वो कह रही है चाहे जस्ट अ चेरी ही मिल जाए, वो ड्रॉप फ्रॉम अ पाइल, तो मे बी अ चेरी वो ड्रॉप, कि शायद उसमें से कोई चेरी ही गिर जाए, फ्रॉम दैट पाइल मीन्स फ्रॉम दैट बंच ऑफ फ्रूट्स। तो उसको क्या लगता है कि उसको लग रहा है कि वो फ्रूट्स जो है इतने रियल लग रहे हैं उसको, तो इसका क्या मतलब है, उसको बिल्कुल रियल से फ्रूट्स लग रहे हैं कि वो कुछ ऊपर लटक रहे हैं फ्रूट्स, और शायद उनमें से कभी कुछ गिरेगा तो मैं उनको फ्रूट्स को खा पाऊंगी, जो भी उनमें से कुछ नीचे गिरेगा, फ्रॉम दैट पाइल, फ्रॉम दैट बंच ऑफ फ्रूट्स। नो मैटर हाउ अर्ली आई रन देयर टू लुक, इट हैज़ ऑलवेज बिगन टू फॉल थ्रू। तो वो कहती है कि कभी कभी, वेन एवर, हाउ अर्ली मीन्स चाहे सुबह सुबह या चाहे बहुत ही तेज़ी से मैं भागती हुई आऊँ उन फ्रूट्स की तरफ, मतलब उस रूम में जहाँ फ्रूट्स लगे हुए हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, इट सीम्स, कि वो फ्रूट गिरेंगे, दे विल फॉल। एंड वन नाइट व्हेन एट बेड टाइम आई क्रेप्ट इन टू सी, तो वो कहती है कि एक दिन रात को, बेड टाइम पे मीन्स रात को, जब रात को सोने का टाइम था, आई क्रेप्ट इन का मतलब क्रॉल करना, या यू कैन राइट द मीनिंग टू मूव क्विकली एंड केयरफुली सो दैट नोबडी कैन नोटिस यू। तो मैंने धीरे से उस रूम की तरफ आई देखने के लिए कि वाकई में कुछ गिर रहा है उसमें से। इट वॉज फॉलिंग बाय कैंडल लाइट टू, तो वो कह रही है कि कैंडल लाइट क्यों, क्योंकि आधी रात थी तो डिम लाइट थी, है ना, तो इतनी डिम लाइट में भी वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो फ्रूट्स फॉल होने वाले हैं, गिरने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, आई एम श्योर दे आर मैजिकल फ्रूट्स। तो उसको क्या लग रहा है लिटिल गर्ल को कि ये कोई आई एम श्योर, वो कह रही है मुझे पक्का पता है कि ये किस तरह के फ्रूट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स दे आर मैजिकल फ्रूट्स, कि वो कोई मैजिकल फ्रूट्स हैं। एंड ईच वन मेक्स यू हियर थिंग्स और सी थिंग्स और गो फॉर एवर इनविजिबल बट इट्स नो यूज़। पर वो कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन फ्रूट्स में ना कुछ मैजिक है। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन फ्रूट्स में से हम कुछ खा लेंगे या कोई भी कुछ खा लेगा वो फ्रूट्स में से, तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें सुनाई देंगी, कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, या फिर वो खुद ही हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, इनविजिबल हो जाएगा। बट इट्स नो यूज़ क्यों, क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पा रही है वहाँ तक। एंड ऑफ कोर्स आई शैल जस्ट नेवर नो। अब वो ये क्यों कह रही है कि पर मुझे ये चीज़ तो कभी पता ही नहीं चलेगी, ये सीक्रेट कि वेदर वो मैजिकल है या नहीं, ये मुझे आई शैल जस्ट नेवर नो, कि मुझे ये कभी पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज शी जस्ट कैन नॉट रीच टिल अप टू दोज फ्रूट्स एंड शी कैन नॉट टेस्ट दोज फ्रूट्स। सो मेन इसका मतलब क्या है कि उसको लग रहा है कि वो मैजिकल फ्रूट्स हैं, और if anyone eat those fruits then he would be able to hear certain things, वो उसको कुछ चीज़ें सुनाई देंगी अलग सी, उसको कुछ चीज़ें अलग सी दिखाई देंगी, या फिर वो आदमी या वो बंदा जिसने फ्रूट्स खाए हैं वो खुद ही हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इनविजिबल। दैट इज़ फ्रूट्स माइट मेक दैट पर्सन इनविजिबल whoever eats them, बट दिस इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है और उसको इस चीज़ का कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो वो वहाँ तक पहुँच पा रही है और ना ही वो कभी उनको टेस्ट कर पाएगी। नेक्स्ट stanza, फॉर द ladders too heavy to lift and the chairs are not nearly so tall as I need। अब इससे क्या पता चल रहा है, that she is trying to reach, you can see the picture here, she tries to reach, किसकी हेल्प से, ladder की हेल्प से एंड chair की हेल्प से। So you can see the ladder, but because she is a little girl, so she is saying that this ladder is too heavy for her. So what adjective she has used for the ladder, that it is very very heavy for her, too heavy। and chairs कैसी है वहाँ पे, this is a chair, so what kind of chair it is not too tall, क्योंकि वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी इस पर खड़ी होके, वो तो छोटी सी लड़की है। so chair के लिए क्या यूज़ करा है उसने the chairs are not nearly so tall as I need, जितनी ऊंची चेयर की उसको ज़रूरत है, tall chair की, so the tall chair which she needs, the chair it is not tall enough, right, which can make her reach up to that level so that she can grab those fruits। I have given up the hope, so she is saying मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, hope of having those fruits, of eating those fruits, and I feel I shall die without having accomplished the deed। और वो लड़की सोच रही है कि I think अब तो मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, बट मेरा ये सपना, मेरा ये डीड, मतलब मेरी ये विश, क्या विश है उसकी, कि वो फ्रूट्स को खा पाना, जो उसको बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं, जो उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, मेरी जो ये विश है मैं वो कभी भी अकम्प्लिश नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी भी वो फुलफिल नहीं कर पाऊंगी।
मतलब कभी भी अपना जो ये गोल है उसका, डीड मतलब उसका जो एक्शन है या उसका जो विश है, जो वो काम करना चाहती है ये वाला, वो कभी भी कर नहीं पाएगी और वो उसको करे बिना ही शी विल डाई, मर जाएगी. इट इज़ अ लिटिल बिट सैड. सो नाउ शी इज सैड एंड डिसअपॉइंटेड. क्यों? व्हेन यू सीम वेरी नियर टू एडवेंचर्स एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट. तो वह कह रही है बड़ा दुख होता है, अब उसको दुख हो रहा है, वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो कह रही है कि जब आपको लगता है, व्हेन यू सीम, कि आप किसी एडवेंचर के बहुत ही पास हो, या एडवेंचर जैसी चीज़ों के, थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट मीन्स इसके जैसी चीज़ों के बहुत ही पास हो, विच नियरली बिगिन एंड देन डोंट एंड यू नो इट इज़ ओनली बिकॉज यू आर शॉर्ट. तो वो कहती है कि आपको लग रहा है कि आप एक गोल, अपने गोल के या अपने किसी एडवेंचर को के पास हो, एडवेंचर जैसी या फिर एडवेंचर जैसी चीज़ों के पास हो, बट वो चीज़ स्टार्ट हो गई है, मतलब वो एडवेंचर स्टार्ट हो गया है बट वो ख़त्म नहीं हो सकता, बिकॉज जब आपको पता चलता है कि आप बहुत शॉर्ट हो इन हाइट टू अकम्प्लिश दैट गोल और टू कंप्लीट दैट एडवेंचर, तो आपको बहुत ही कैसी फीलिंग होती है, सैड वाली फीलिंग होती है, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है. सो दिस वाज ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. नाउ दीज आर द मीनिंग, वर्ड मीनिंग. स्लिपरी फ्लोर वी हैव डिस्कस्ड, विच आर हाईली पॉलिश्ड फ्लोर्स, बहुत ही स्मूथ फ्लोर्स हो जाते हैं. जो बुक रूम मीन्स लाइब्रेरी. दे टम्बल मीन्स द फ्रूट्स विच सीम टू फॉल वन ओवर, मतलब जो लग रहा है कि नीचे गिरने वाले हैं. सीम मीन्स लगना, विच माइट फॉल ओवर. दे टम्बल एंड टम्बल. पाइल का मतलब द बंच ऑफ फ्रूट्स. अकम्प्लिश्ड का मतलब डन. Short का मतलब who is short here? Short is the poet, and who is the poet here? Poet is a little girl, and short means that her height is very short. So here are the short questions. The poet stood underneath the painted ceiling with the mouth wide open, hoping that the cherry would drop from the tumbling fruits, या in wonder at the beautiful painted ceiling. तो क्या वो नीचे खड़ी हुई होप कर रही थी कि कोई चेरी गिरेगी, या वो बहुत ही वंडर में थी, मतलब बहुत ही सरप्राइज थी कि इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग. तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए, बिकॉज हियर इट इज़ रिटन. वो ये सोच रही थी, वो होप कर रही थी कि कोई ना कोई चेरी गिरेगी और मैं वो खा लूँगी. नेक्स्ट, द पोएट थिंक्स शी कैन नॉट प्लक द फ्रूट्स फ्रॉम द सीलिंग बिकॉज. अब उसको क्या लग रहा है कि वो क्यों नहीं प्लक कर सकती? बिकॉज वो मैजिकल है या बिकॉज शी इज़ टू शॉर्ट? तो आंसर इज बिकॉज शी इज़ टू शॉर्ट, उसकी हाइट बहुत छोटी है. नेक्स्ट इज थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट मीन्स एडवेंचर्स या एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस लाइक एडवेंचर्स. तो उसने यहाँ पे यूज़ किया है द वर्ड टू एडवेंचर्स एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जो एडवेंचर के जैसी हैं. सो वी विल choose this option, exciting experiences like adventures. Right, now we will discuss the extra question answers. So here, describe the grandfather's house. The grandfather's house was a wonderful house with several windows, doors, stairs and smooth floors. Which room did the poet like and why? The poet liked green dining room because of its, दो चीज़ें हमने करी थी, ceiling and wall. Describe the painting on the ceiling. The painting on the dining room ceiling was of fruits including apples, grapes, pears, melons, pineapples, cherries, which appear to be real. Why does the little girl stand under the ceiling with her mouth open? The little girl stands under the ceiling with her mouth open, wide open, hoping that some of the fruits would fall into her mouth. What does the poet imagines the fruit to be and why? The poet imagines the fruit to be magical fruits because they appear to be falling but never fall through. Secondly, she believes that, वो ऐसा क्यों सोचती है कि ये मैजिकल है? Because she believes that eating them could make one hear or see the things or become invisible. उसको लगता है कि अगर ये मैजिकल फ्रूट्स को कोई खा लेगा तो उनको कोई ना कोई चीज़ें और ज़रूर सुनेंगी, नज़र आएंगी, या फिर वो जो बंदा वो खाएगा वो इनविजिबल हो जाएगा. Next, what does the poet say? Why does the poet say, I shall just never know? The poet says so because she cannot taste those fruits. तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो है भी मैजिकल या नहीं. Now, who is the poet? A child or an adult? So the poet is a child who is short in height. It is mentioned that the poet is a child, or you can say that she is a little girl. Why is the little girl sad? Because she cannot taste the fruits that appear to have magical qualities even though they are so close to her. कि वो फ्रूट्स उसके इतने पास हैं और उनमें उसको लग रहा है मैजिकल क्वालिटीज़ हैं, फिर भी वो उन फ्रूट्स को टेस्ट नहीं कर पा रही, इसलिए वो सैड है. Whose house is it in the poem? It is grandfather's house. What kind of house it is? It's a big beautiful house with doors, windows, stairs and slippery floors. What all rooms were there in the house? There were many rooms including poet's room, her mother's room, book room and the parlour. Now what are the rhyming words in the poem? Doors and floors, all and wall, through and to, while and pile, go and no, need and deed, sort and short. So these are all the rhyming words in different stanzas. The poet hopes that just a dash would drop, just a cherry would drop. From where? From a pile. What does the pile mean here? So pile here means the bunch of fruits. When did the poet creep? One day. So the poet crept on one night, or you can say one night the poet crept into the dining room. So here it should be creep. When did the poet creep? Creep मतलब धीरे से चुपके से कहीं पे जाना. Fruits appear dash to the poet magical. One can forever go dash as per the poet on eating the fruits. Means forever के लिए बंदा क्या हो जाएगा जो वो fruit खाएगा? Invisible. What is the adjective used for ladder? It is heavy. What kind of chairs are there? So chairs are not so tall.
So these were all the extra question answers and the explanation of this poem. I hope you liked it. And there is one more portion here which is written that what are murals? Beautiful paintings on the ceilings and walls of old churches, monasteries, palaces and temples depicting religious stories and historical events. जो पुराने churches वगैरह में या paintings बनी होती हैं जिससे हमारे को historical stories, events का पता चलता है, they are called murals. So you can read here, the little girl looks at the painting of the fruit on the ceiling and thinks that they are real. So this is her imagination. She is thinking कि real fruits हैं और वो magical है. And she feels that the painting which is high above her head, they seem to be on the verge of falling. मतलब वो नीचे गिरने वाले हैं but फिर भी गिर नहीं रहे हैं. तो if we discuss these, what is so special about the green dining room? क्या speciality थी उसकी? Ceiling and wall. हमने दो चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पे कि dining room की क्या speciality थी? Ceiling and wall. Then describe the painted ceilings that we have done earlier. कि painted ceiling कैसी थी? fruit की उसमें painting थी. So it had the beautiful painting of the fruits which seemed real. और कौन कौन से fruits थे? That we can mention the list from the previous question which we have discussed. What powers does the poet imagine the fruits have? So poets imagined that the fruits have magical powers. Why does the poet say I will just never know what the fruits are like? Poet ऐसा क्यों कह रही है? Because she is not able to reach to those fruits and she would never be able to taste them. What is a little bit sad for the poet? अब poet के लिए little bit sad चीज़ क्या है? Because she is so close to her adventure, but still she is not able to accomplish that adventure. Right, so I hope you like this explanation and each and every point is clear. Please do drop in a comment if you have any queries, and if you like this video, please do share it with your friends and your classmates so that it can help as many children as possible. Thank you so much for joining in, and do let us know what other videos you want on any topic of class 6. So have a great day, bye, and you can check out the other playlist for class 6 as well. All the subjects playlists are up with the title class 6 and the subject name on this channel. Thank you and have a great day, bye.